A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. And our new topic of today's video that is an interest on drawing. In the last few videos, we already discussed the chapter number 2, accounting for partnership firm. And in this chapter, we discuss what is partner, what is partnership, what is partnership firm, and how partnership firm prepared its profit and loss appropriation account, how partnership firm prepare its capital account with the fixed capital method and a fluctuating capital method. In the fixed capital method, partnership firm prepare its financial prepares capital account into the two part, that is a capital account and current account, whereas a fluctuating capital method, partnership firm prepare only a single account as a capital account, which include all the items, whether it is a capital item or the appropriation items. Okay, so in this video, first of all, we discussed the basic concept related to the interest on drawing, and thereafter we will move to the next topic. Okay, so in the last so let's start the today's topic, that is the interest on drawing. The interest on drawing, you know very well, there are basically two ways to calculate the interest on drawing. Interest on drawing calculate करने का दो तरीका होता है. Basically, there are basically two situations for calculating the interest on drawing. Listen carefully. There are basically two situations for calculating the interest on drawing. The first situation, when amount of drawing fixed, and when amount of drawing is not fixed. ये थोड़ा सा बिहेवियरल कॉन्सेप्ट. कभी कभी ड्राइंग की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है कि हम फर्स्ट डे को निकालेंगे, हर महीने, हर हाफ ईयरली में निकालेंगे, हर क्वार्टर में निकालेंगे, तो इट इज टोटली फिक्स्ड. और कभी कभी फिक्स नहीं होता. यहाँ फिक्स्ड का मतलब है व्हेन अमाउंट एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग, दोनों की बात करिए यहाँ पर. व्हेन अमाउंट एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग आर फिक्स्ड and when amount and period of drawing are not fixed. यानी दो सिचुएशन है, जब अमाउंट का वैल्यू, ड्राइंग की वैल्यू और उसकी पीरियड मतलब कब निकलेगा पैसा, ये दोनों फिक्स्ड. और दूसरा क्या हो, व्हेन अमाउंट एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग आर नॉट फिक्स, यानी कि ड्राइंग का ना तो पीरियड डिसाइड है कब निकालना है और कितना निकालना है, ये दोनों फिक्स नहीं. यानी कि दो क्वेश्चन फिक्स्ड हो, व्हेन एंड हाउ मच. ओके, ये पहले से क्या है, फिक्स्ड है. एंड इसमें क्या है, व्हेन एंड हाउ मच, ये फिक्स नहीं है. क्वेश्चन में अब आपको क्लियर हो गया. मैं आपको दो सेंटेंस देता हूं. सपोज मिस्टर एक्स विथड्रॉ द अमाउंट एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर ₹10,000. तो इसमें आप देखो, व्हेन कब निकालना है, हर महीने के बिगनिंग. हाउ मच कितना निकालना है, 10,000. सो इट इज अ फिक्स्ड. बट सम ऑफ द क्वेश्चन, अगर हम दूसरे पर्सन की बात करें, लाइक अ वाई, एक्स का तो फिक्स था, वाई का फिक्स नहीं है. सपोज आइडेंटिफाई करिए. सपोज मिस्टर वाई विथड्रॉ द अमाउंट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, that is 10,000. After 3 months he withdraw the amount, that is 4,000. यानी कि ये भी डिसाइड नहीं है वो कब निकालेगा, कभी 1 महीने बाद निकालेगा, कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद. एंड आफ्टर दैट अमाउंट विल ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, अमाउंट भी फिक्स नहीं है वो कितना निकालेगा. सो सिचुएशन में हाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सो बेसिकली व्हेन अमाउंट एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग आर फिक्स्ड, तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. एंड व्हेन अमाउंट एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग आर नॉट फिक्स्ड, तो इस सिचुएशन में वी फॉलो द टू मेथड. और दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, यू नो वेरी वेल, दैट इज अ सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. ओके, so I hope it is clear for you. How many methods?
when amount and period of drawing are not fixed, the simple method and product method. Under the simple method, the formula of interest on drawing, that is interest on drawing into rate upon 100 into months upon 12, ये फॉर्मूला है. और प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू ड्राइंग सॉरी इंटरेस्ट ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12. तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए. So let's we take one numerical question for creating a better understanding regarding the calculation of interest on drawing when the period and amount of drawing is not decided. So you can see that the second case which are related to the interest on drawing, that is when period and amount of drawing are not pre-decided. So अगर ड्राइंग का पीरियड मतलब कब निकालना है ड्राइंग को, व्हेन एंड हाउ मच, कितना निकालना है, ये दोनों चीजें पहले से क्लियर नहीं होती. इट इज नॉट प्री डिसाइडेड. सो इन दिस सिचुएशन वी फॉलो द टू मेथड. आइदर वी फॉलो द सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वी follow the product method of calculation of interest on drawing. So let's we take the one question. The question is, और इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड एज वेल एज वी सॉल्व पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय द product method. Okay, so the question is date of drawing and the amount of drawing. Okay, the date of drawing is 1st June 2018. 1st June 2018 को हमने 800 रुपीज क्या किया, विड्रॉ किया. एंड 1st October 2018 को वी विड्रॉ द 1000 rupees, and thereafter 1st December 2018 को we withdraw the 1000 rupees again, and 1st March 2019 को we withdraw the 600 rupees as a drawing. और ये चार ड्राइंग बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि ये इस पे कौन सा रूल एप्लीकेबल है, केस 1 या केस 2. केस 1 इज अ व्हेन पीरियड एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज pre-decided, but the second case when period and amount of drawing are not pre-decided. So इसमें आप देखो ना तो पीरियड डिसाइड है, जब मैंने तब पैसा निकाला है जून में, फिर जुलाई अगस्त सितंबर छोड़ के अक्टूबर में निकाला है, फिर नवंबर छोड़ के दिसंबर में पैसा निकाला, फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी छोड़ के मार्च में, यानी उसका जब मैंने तब वो पैसा निकालना है. पीरियड इज नॉट डिसाइडेड एज वेल एज अमाउंट इज नॉट डिसाइडेड. कभी 800 रुपए निकालना है, कभी 1000, कभी 600 रुपए. यानी इस पे कौन सा केस एप्लीकेबल है, इन दिस सिचुएशन द केस नंबर 2 आर एप्लीकेबल. सो इन दिस सिचुएशन वी फॉलो द सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड. इट इज टोटली डिपेंड ऑन मी, हम कोई भी मेथड फॉलो करें, सिंपल मेथड फॉलो करें या फिर प्रोडक्ट मेथड फॉलो करें. तो कैसे निकलेगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ, इसमें रेट ऑफ दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, दैट इज 6% पर एनम. क्वेश्चन में कुछ नहीं देता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम प्रोवाइड नहीं करते. इसको लेकर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ओके, सो अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं. सॉल्यूशन में पहला मेथड था इस टेक्निक को सॉल्व करने के लिए, दैट इज सिंपल मेथड. और सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता था ड्राइंग इनटू मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ बाय 12. सिंपल सा. तो अगर आप सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो फर्स्टली आपको कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, जैसे डेट, अमाउंट. ओके, द डेट इज 2018 जून 1, अक्टूबर 1, दिसंबर 1, मार्च 1. अमाउंट इज 800, 1000, 1600. So how you will calculate the interest on drawing?
द फर्स्ट इज ड्राइंग. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 800. इसमें हम हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे. 800 मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 दैट इज 6/100. 6% से है तो 6/100 इंटू मंथ बाई 12. मंथ कब से कैलकुलेट होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर. कब एंड कब होगा? अगर 1 मार्च को हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो वी फाइंड फॉलो द फाइनेंशियल ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड इज ऑन 31st मार्च. हमने विड्रॉ कब कर दिया? हमने विड्रॉ किया जून 1. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सो कितने महीने बाद हमने पैसा फाइंड आउट किया? दैट इज 10 मंथ. तो उस पर 10 मंथ का क्या लगेगा? ड्राइंग निकलेगा. देयर आफ्टर इन द सेकेंड केस 10,000 1,000 इंटू 6% इंटू अक्टूबर टू 31st मार्च. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर 6 मंथ. थर्ड में अगेन 1,000 6%. कब से काउंट होगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर 4 मंथ. एंड फॉर दिस इज दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. देख रहे हो हम हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं इन द सिंपल मेथड. सो इन द लास्ट 600 मल्टीप्लाइड बाई 6% इनटू मार्च, ओनली मार्च. सो कितने महीने होंगे? 1/12. अब हम क्या करेंगे? सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे और फिर लास्ट में सबको टोटल कर देंगे तो आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. दिस इज द वे by which we calculate the interest on drawing by simple method. इसमें हम पहले सिंपल सा हम लोग फॉलो करते हैं फॉर्मेट, डेट, अमाउंट एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले को ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के साथ कैलकुलेट किया जाता है. तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी 40 रुपीज. सेकेंड का आएगा 1,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ये आएगा 30 रुपीज. थर्ड में आपका आएगा 1,000 इंटू 6% इंटू 4/12, ये आएगा 20 रुपीज. एंड लास्ट 600 मल्टीप्लाइड बाई 6% इंटू 1/12, ये आएगा आपका 3 रुपीज. सो एट एंड आप क्या करोगे? सबको ऐड कर दो. 40, 30, 23. तो सबको ऐड करने पे क्या आएगा? 43, 70, 72, 90, 93 रुपीज. So total interest on drawing is 93 rupees by the simple method. Again we solve this question by the product method. हम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करेंगे और आंसर भी सेम आएगा, 93 आएगा. ओके, सो लेट्स वी सी इट. सो लेट्स वी सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय द प्रोडक्ट मेथड. हम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं. सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यू नो वेरी वेल, इतना तो हमें जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे हम सिंपल मेथड फॉलो करें चाहे हम प्रोडक्ट मेथड फॉलो करें, इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए. प्रोडक्ट मेथड में यू नो वेरी वेल, इन द प्रोडक्ट मेथड फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है. अंडर द प्रोडक्ट मेथड वी फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द फॉलोइंग वे, दैट इज अ टोटल प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1/12. This is a formula of product method of interest on drawing. Interest on drawing कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है. अब इसमें आप यू कैन सी द डेट एंड अमाउंट. ओके, इसमें आपको करना क्या है? फर्स्टली यू फाइंड आउट द पीरियड इन मंथ. पीरियड इन सेंस कितने महीने के लिए आपने ड्राइंग किया. जैसे आपने जून 1 को ज्वाइन किया तो कितने महीने आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, मंथ में काउंट करो. तो जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो आपको कितने महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? यहाँ 10 मंथ के लिए, यहाँ 6 मंथ के लिए, यहाँ आपको 4 मंथ के लिए और यहाँ 1 मंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो आपने फर्स्टली पीरियड कैलकुलेट किया एंड देयर आफ्टर यू फाइंड द प्रोडक्ट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज अमाउंट इनटू पीरियड. अमाउंट इनटू पीरियड मतलब 800 मल्टीप्लाई, ये मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से बता रहा हूँ कि हाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द प्रोडक्ट मेथड. हम प्रोडक्ट मेथड से कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं? So which are calculated are as follows, that is 800 multiplied by 10, that is a 8,000 product. 600 multiplied by 1,000, that is 6,000 product. 1,000 multiplied by 4, that is a 4,000 product. And 600 into 1, that is a 600. So total is 8, 6, 14, 4, 18, 18,600 is the total product. So the total product is 18,600. Is that clear? Yes.
The total product is 18,600. It is not a total interest on drawing. So आपने टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया. अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे? द टोटल प्रोडक्ट इज 18,600 into what is the rate of interest? The rate of interest on drawing, that is a 6% into 1/12. So अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम वही आंसर आएगा जो आपने सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया. कितना आया था? 93 रुपीज. देखते हैं यहाँ पे भी 93 रुपीज आता है. 18,600 into 6% into 1/12. Yes, 93 rupees आ रहा है. It means when period and amount of drawing are not pre-decided, in this situation we calculate the interest on drawing either by the simple method or the product method. Point number 1. Point number 2 is सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो आंसर सेम आने वाला है. यानी आइदर वी कैलकुलेट द सिंपल मेथड और द प्रोडक्ट मेथड, फॉलो द सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, द आंसर शुड बी सेम. चाहे सिंपल मेथड से आप आईओडी निकालिए, चाहे प्रोडक्ट मेथड से आप आईओडी. सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू कि हाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन पीरियड एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर नॉट प्री डिसाइडेड. The second case, the first case you know very well, when amount and period of drawing are pre-decided. चलते हैं इस पे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि अगर पीरियड डिसाइड होगी, अमाउंट भी डिसाइड होगी, तो सिचुएशन में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं. इसमें कई सिचुएशन होती है, यू नो वेरी वेल. सो द सेकंड केस इज व्हेन पीरियड एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर pre-decided. So the second case is when period and amount of drawing are pre-decided. So इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. इस सिचुएशन में कई स्टेप्स हैं. जैसे सबसे पहला है मंथली ड्राइंग. इसमें कई सिचुएशन हो सकती है. When partners withdraw the amount from the firm every month, when partner withdraw the amount from the firm at every quarter. यू कैन सी दैट हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर है या तो हर महीने पैसा निकालेगा या तो हर क्वार्टर में पैसा निकाले. पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं. सो व्हेन द ड्राइंग, व्हेन द अमाउंट एंड द पीरियड ऑफ ड्राइंग आर प्री डिसाइडेड, सो इन दिस सिचुएशन द फर्स्ट सिचुएशन आर, इन दिस सिचुएशन द फर्स्ट केस आर दैट इज अ मंथली ड्राइंग. तो इसमें आता है सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं. 3 सिचुएशंस होती हैं. आइदर पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द फर्म एट बिगनिंग, या तो हर महीने के बिगनिंग में पैसा निकालेगा, या हर महीने के मिड में पैसा निकालेगा, या हर महीने के एंड में पैसा निकालेगा. व्हाट इज द मीनिंग? इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग जब होती है, जैसे सपोज मिस्टर एक्स विड्रॉ द 1,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म एवरी मंथ. तो एवरी मंथ में 3 सिचुएशंस हैं. एट द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ, एट द मिड ऑफ द एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ. तो अगर कोई भी पार्टनर हर महीने पैसा निकालता है फ्रॉम से बिगनिंग में, एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, सो इस सिचुएशन में द फॉर्मूला ऑफ आईओडी इज ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 अपॉन 12. अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. If any partner withdraw the amount from the firm every month at mid. So situation में interest on drawing का formula होता है, that is a drawing into rate upon 100 into 6.5 upon 12. The third one, when any partner withdraw the money from the firm at every month at end. In every month at end. So सिचुएशन में IOD, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, जैसे ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5.5 अपॉन 12. यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 6/12 होगा. यानी यू कैन सी दैट बिगनिंग में अगर कोई पार्टनर पैसा निकालता है तो 6.5 मंथ की तरह ड्राइंग कैलकुलेट होती है. मिड में पैसा निकालता है एवरी मंथ, तो 6/12 एप्लीकेबल होता है. और एंड में अगर पैसा निकालता है तो 5.5. इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज पीरियड. इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज पीरियड. तो सिंपल से याद रखो, इन एवरेज पीरियड किसे कहते हैं? ये द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज एवरेज पीरियड.
यानी इन केस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग व्हेन एनी पार्टनर विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द फर्म एट एवरी मंथ एट बिगनिंग, so average period is 6.5, at mid के केस में the average period is 6 and at end के केस में that is average period is 5.5. यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं मैं आपको कि when there is a no information, ये तो इंफॉर्मेशन है मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई जो है हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, he withdraws the amount from the firm every month, बट ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि बिगनिंग में निकालना है, मिड में निकालना है कि एंड में निकालना है. So in the absence of any information regarding the period of the मंथली में तो निकाल रहा है लेकिन बिगनिंग मिड और एंड को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है क्वेश्चन में, सो वी फॉलो द मिड, वी फॉलो द मिड. सो व्हेन देयर इज अ नो इंफॉर्मेशन, सो उस केस में भी आईओडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, दैट इज डे ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12. सो दिस इज अ सिचुएशन when period and amount of drawing are pre-decided. इसमें सबसे पहला केस होता है that is interest on monthly drawing. The second is the interest on quarterly drawing. Please note down interest on quarterly drawing. In case of the interest on quarterly drawing, you know very well what is the quarterly drawing. यानी हर 3 महीने पे पैसा निकालना. एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, you know very well. एक क्वार्टर 3 महीने का होता है. ओके, सो द क्या होता है कि पार्टनर जो है एवरी 3 मंथ पे पैसा निकालता है. अब 3 मंथ के फर्स्ट में निकाले, 3 मंथ के मिड में निकाले, 3 मंथ के एंड में निकाले, ये भी हो सकता है. तो मंथली यू नो वेरी वेल, मंथली केस में एवरी मंथ ड्राइंग होती है और क्वार्टरली में क्या होता है एवरी 3 मंथ्स पे क्या होता है पैसा विदड्रॉ किया जाता है बाय द पार्टनर. सो सिचुएशन में हाउ वी विल फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इस सिचुएशन में भी आपको याद रखना है कि बिगनिंग के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा, मिड के केस में क्या फॉर्मूला होगा और एंड के केस में क्या फॉर्मूला. तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं. व्हेन एनी पार्टनर विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द फर्म at the beginning of the every quarter, so the interest on drawing will be a drawing into rate upon 100 into 7.5 upon 12. In case of the mid drawing, the interest on drawing formula is drawing into rate upon 100 into 6/12. You can see that चाहे mid में हो तो आपका 6/12 ही लगेगा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो भी 6/12 ही लगेगा. और एंड के केस में द फॉर्मूला विल बी ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 4.5 अपॉन 12. यानी याद रखिएगा अगर हम इसको समरी बनाएं तो यू वी कैन सी दैट मंथली ड्राइंग के केस में एवरेज प्रोडक्ट इज फॉर द बिगनिंग 6.5, फॉर मिड 6 एंड फॉर एंड 5.5. इन केस ऑफ द क्वार्टरली ड्राइंग यानी जब पार्टनर हर क्वार्टर पे पैसा निकालता हो तो सिचुएशन में बिगनिंग में 7.5 एवरेज प्रोडक्ट होगा, मिड के लिए 6 एवरेज प्रोडक्ट होगा और एंड के लिए 4.5 एवरेज प्रोडक्ट. तो उसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो. अभी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं. ओके, सो लेट्स वी मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट. So let's we take the question number 20A. The question number 20A is A, B, C are partner in a firm. You are informed that the question number 20A, A, B, C are partner in a firm. You are informed that A draws 1,000 per month from the firm at the beginning of every month. B draws 1,000 per month from the firm at the end of the every month, whereas C draws 1,000 per month from the firm at the middle of the every month. Interest on drawing is to be charged at 12% per annum. Calculate interest on partners drawing. So आपको A, B, C तीनों की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है तो इसमें हम 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं. पहले वाले केस में कह रहा है कि A का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालता है. A का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, इसमें लिख रहा है 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपए हर महीने वो पैसा निकाल रहा है. सो उसकी टोटल ड्राइंग कितनी होगी 1,000 इंटू 12, दैट इज अ 12,000. ओके, ये बात याद रखिएगा कि उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 12,000. सॉरी, ड्राइंग की अमाउंट कितनी है, टोटल ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्लियर हो गया होगा, दैट इज अ 12,000. कैसे 1,000 एवरी मंथ, सो द 12 मंथ्स के लिए वो कितना निकालेगा 12,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज टोटली डिपेंड
According to A's information, you can see that A ने हर beginning में पैसा निकाला है at beginning. So you know very well what is the formula of IOD? Total drawing into rate upon 100 into 6.5 upon 12. So total drawing is 12,000. Rate is, according to the question, the rate of drawing is 12% into 6.5 upon 12. So 12 12 cancel, 0 0 cancel. So we find that the answer of A drawing is 780 rupees. So answer of the A's drawing is 780 rupees. Let's we move to the second partner. Second partner कितना withdraw कर रहा है? Second partner withdraw कर रहा है 1000 per month from the firm at the end of every month. At the end. So वो भी कितना withdraw कर रहा है? 1000 every month. So आप इसको ब्रैकेट में मत रहने दो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. 1000 every month. So ये भी 12,000 withdraw कर रहा है. So the formula is in this situation at end के केस में फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5.5 divided by 12. So the total drawing is 12,000, rate is 12% and the 5.5 upon 12. 12 से 12 cancel, 0 से 0 cancel. So the 120 multiplied by 5.5. So B का ड्राइंग कितना आएगा? B का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, that is 600 rupees. Okay. Let's we move to the third partner. The third partner name is little bit मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है. So the calculation mistake के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा 660. That is a 660. Okay. थर्ड सिचुएशन में हम लोग जाते हैं. That is a C's interest on drawing. C जो पार्टनर है, Mr. C, he draws 1000 per month from the firm at the middle of every month. At mid. वो एट मिड में पैसा निकाल रहा है, हर महीने के मिड में. तो मिड में पैसा निकाल रहा है, कितना रुपए निकाल रहा है? दैट इज 1000 इंटू 12. 1000 रुपए हर महीने निकाल रहा है. सो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12. सो द टोटल ड्राइंग इज 12,000, रेट इज 12%, 6/12, दैट इज 720. सो यू कैन सी दैट ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 780, B का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 660 and C का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया that is 720. And you can see that how we will calculate the interest on drawing when period and amount of the drawing are pre-decided. आप इसमें देख रहे हो, ये क्लियर है, 1000 रुपए वो निकालना है, अमाउंट भी क्लियर है, पीरियड हर महीने निकालना है, बिगिनिंग में निकालना है, मिड में निकालना है, एंड में निकालना है. इट इज ऑल द थिंग्स आर प्री डिसाइडेड. सब चीजें पहले से हमें पता है. ओके. सो एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो एक क्वेश्चन और हम लोग बात कर लेते हैं क्वार्टर से रिलेटेड. जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग पे भी डिस्कस करा देता हूँ. मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹8,000 at the end of each quarter. At the end of each quarter, find out his interest on drawing at the rate of 10% per annum. यानी कि इसमें भी देखो मिस्टर एक्स ने 8,000 रुपीज वो विड्रॉ कर रहा है. 8,000 रुपीज वो क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में. सो यू नो वेरी वेल इसमें फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. एंड का मतलब क्या होता है? एंड मींस यस 4.5 अपॉन 12. एंड के केस में एवरेज पीरियड होता है दैट इज 4.5 और इट इज एन क्वार्टरली ड्राइंग. तो यू नो वेरी वेल क्वार्टरली ड्राइंग के केस में अगर हम लोग टोटल ड्राइंग के बारे में बात करें तो द टोटल ड्राइंग विल बी 8,000 ईच क्वार्टर और हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं. 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, हर क्वार्टर में पैसा निकालना है. इसका मतलब वो कितना निकालना है? 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 32,000. साल में वो 32,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई 10% इंटू 4.5 अपॉन 12. तो उसको सॉल्व करिए एंड दिस इज 3200 इंटू 4.5 अपॉन 12 और जो उसको सॉल्व करके आंसर आएगा दिस इज एन एक्स interest on drawing.
x को उतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को पे करना पड़ेगा एंड द आंसर इज 1600 rupees. Okay, so I hope today we cleared a very important topic, that is interest on drawing in both of the situation, that is when amount and period of drawing are pre-decided and when amount of and period of drawing are not pre-decided. In the next video we will discuss a new topic. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.